بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے پرستان کی شہزادی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا پارٹ 3 پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ 4 پڑھیں گے۔ سیدانی بھی بیان کر رہی تھیں کہ اس کے سامنے نہایت قیمتی کپڑوں کے تھان آئے، جو کہ مختلف نادر اقسام کے کپڑے تھے۔ کچھ پر تو قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے اور کچھ پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام ہوا تھا۔ جب سارا سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ آپ اس سے آگے پڑھیں گے۔ بہت تعریف سنی ہے ہم تو، جب چاہیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو۔ مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ آبرو، عزت۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، درخواست کی، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارا مشغلہ تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں۔ مشغلہ شغل، 8 پہر دن رات۔ مشغلہ شغل، 8 پہر دن رات، سیر سپاٹے، سیر و تفریح کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ پرستان میں سونے کا کوئی کام نہیں، ہم تو دن رات سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ جی اکتایا، دل بیزار ہونا، جی اکتانا، دل بیزار ہونا۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا بھی آنکھوں میں نام نہیں تھا، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے۔ گرانی کا معنی ہے بوجھ۔ کہتی ہیں کہ جاگنے کی وجہ سے بالکل بھی کسی قسم کی تھکاوٹ یا بوجھ، نہ جمائیاں نہ انگڑائیاں آ رہی تھیں، تو پھر میں نے سوچا کہ دیر کرنا اچھی بات نہیں۔ قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، قطر بیونت، کانٹ چھانٹ۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ کترنے لگی، کاٹنے لگی۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ طرح دار خوبصورت، شوخ شرارتی۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ کام نپٹے، کام مکمل ہو، کام نپٹنا، کام مکمل ہونا۔
छुटकारा पाना, निजात पाना। ये इक़्तिबास जो हम पढ़ने लगे हैं, याद रखिएगा ये निहायत अहम पैराग्राफ है और ये इक़्तिबास तशरीह के नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये तकरीबन हर साल ये पेपर में आ जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा और तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने भी अच्छी तरह ज़हनशी कीजिएगा। उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा के अक्ल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। कारसाजी महारत, मुश्किल कुशा मुश्किलें हल करने वाला, वाह वाह हो गई तारीफ हो गई, तारीफ होना। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए। हाथ पाँव में घोड़े लगना, बहुत तेज़ी से काम करने लगना। हाथ पाँव में घोड़े लगना, बहुत तेज़ी से काम करने लगना। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। धुन, लगन। सैयदानी भी कहती हैं कि अगर इंसान किसी काम को करने की लगन हो या लगन रखता हो तो वो काम लाजमी हो जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वहाँ दिनों का हिसाब ही ना था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। सैयदानी भी बयान करती हैं कि जितना काम मैंने परिस्तान में किया सिलाई का, अगर मैं ये इंसानों की दुनिया में अगर ये काम करती, अगर मैं अकेली काम करती तो कम से कम 1 साल ज़रूर लग जाता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ास तौर पर शहज़ादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सैयदानी कहते कहते इसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखती। तुम जानो, पास रहने का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था। भोली भाली मासूम शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, ये नगूड़ा तो यहाँ पड़ा हुआ था। अपने सैयदानी भी अपने दिल की बात कर रही हैं, कह रही हैं वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम, प्यार, मोहब्बत मिला। यहाँ तक कि मुझे शहज़ादी के साथ बहुत प्यार हो गया था और वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, नगूड़ा मनहूस। ये दिल मेरा तो इंसानों की दुनिया में ही था। घर की याद चैन नहीं लेने देती थी। हाय, अपना खंडला परिस्तान में भी नहीं भूला। खंडला कहते हैं झोंपड़े को। आखिर जब सारा काम, खंडला झोंपड़ा, आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, कामयाब किया। मौला ने मेरी आबरू रख ली, यानी अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रख ली। सरकार की शहज़ादी की शादी और शहज़ादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी को रुखसत कीजिए। लौंडी को, खादमा को, यानी अपने बारे में वो आर्ज़ी और इंकसारी का इजहार करते हुए कहती हैं कि अब मैंने काम सारा मुकम्मल कर दिया है। मेरी तरफ से शहज़ादी को ये जोड़े और इसकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इस लौंडी को, यानी इस खादमा को इजाज़त दीजिए, रुखसत दीजिए, इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी, हमारा जी चाहता है कि शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। सच कहूँ मेरा जी भरभराया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी हुई है। तू खाकी, ये आतिशी, ज़्यादा मेल अच्छा नहीं। कहती है कि जब शहज़ादी की, बादशाह बेगम ने कहा कि शहज़ादी की शादी देख कर जाना, हमारा दिल चाहता है कि तुम शहज़ादी की शादी देख कर जाओ। कहती है कि मेरा जी भरभराया, जी भरभराना, जी मचलना, जी भरभराना, जी मचलना। अब खुद से मुखातब होकर कहती है कि सैयदानी, तू दीवानी हुई है, पागल हुई है। तू खाकी, यानी तू मट्टी से बनी है, और ये आतिशी, आतिश कहते हैं आग को,
आतिशी आग का बना हुआ, यानी जिन्नात की दुनिया के जो लोग होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं, इसलिए वो कहती है कि तू मिट्टी की बनी हुई है और ये आग के बने हुए हैं, और इनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना, मुलाकात रखना अच्छा नहीं होता। ज़रा सी देर में बिगड़ बैठें तो जलाकर खाक कर दें। बिगड़ बैठें, नाराज़ हूँ। अगर ये परिस्तान के लोग अगर बिगड़ बैठें, नाराज़ हो जाएं तो जलाकर खाक कर दें, जलाकर खाक कर दें, तबाह कर दें। भाड़ में जाए परिस्तान और परिस्तान की शादी। भाड़ में जाए, दफ़ा हो, परिस्तान और परिस्तान की शादी। चल अपने घर चल, और हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, शहज़ादी की शादी आपको जम जम नसीब हो, मुझे जाने दीजिए। जम जम बार बार नसीब हो, मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, सैयदानी भी, तुम क्यों जाती हो? हमारा दिल कुढ़ता है। ना जाओ, यहीं रहो। दिल कुढ़ना, परेशान होना। दिल कुढ़ता है, दिल परेशान होता है। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। कलेजे पे चोट लगना, दुख महसूस होना। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली, सैयदानी तुम पर वारी, बीवी तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। वारी, कुर्बान। जी भारी ना करो, परेशान हो, कि तुम परेशान ना हो। शहज़ादी से कहती है कि तुम जी भारी ना करो, यानी तुम परेशान ना हो, तुम बुलाओगी तो मैं 100 दफ़ा आऊँगी। एकाएकी दुनिया नहीं छूट सकती, मट्टी मट्टी में खुश रहती है। एकाएकी अचानक दुनिया नहीं छूट सकती, मट्टी मट्टी में खुश रहती है, यानी इंसान इंसानों की दुनिया में खुश रहते हैं। शहज़ादी तो कुछ खफा और कुछ रोंकती सी होकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैयदानी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदा हाफिज। खफा, नाराज़। खफा होना, नाराज़ होना, कुछ रोंकती सी होकर, रोंकती, रोनी सूरत बनाकर, रोने वाली सूरत बनाकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा भी सैयदानी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, खुदा हाफिज। और इसी कलमुहे बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुंचा दे। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनामो इकराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख देना। कलमुहे, काले मुंह वाले, पालकी में, डोली में रख देना। दिल में खुश और ज़ाहिर में बसोरती हुई सबसे रुखसत हुई। रोनी सूरत बनाना, बसोरती, रोने वाली सूरत बनाना। वही परिजात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों की सी वज़ा का आदमी पास खड़ा था। वज़ा का, शक्ल का या किस्म का। मैं पालकी में बैठी और दम के दम में पालकी हवा से बातें करने लगी। दम के दम में, थोड़ी देर में, दम के दम में थोड़ी देर में पालकी हवा से बातें करने लगी, यानी बहुत तेज़ी से चलने लगी। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ होना, तेज़ी से चलना। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा कि वो जो परिस्तान के बादशाह ने इनामो इकराम दिया है कहाँ है। अंधेरे में क्या नज़र आता है? हाथों से टटोलना शुरू कर दिया। टटोलना, तलाश करना शुरू कर दिया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई, जल गई, गुस्से में आना, जल जाना, गुस्से में आना। कि मुए जिन्नात थे ना, यहाँ भी दगा किया, दगा किया, धोखा किया। ये इनके घर का इनामो इकराम है। खैर,
जान बची लाखों पाए। जान बची लाखों पाए यानी गनीमत है कि ज़िंदगी बच गई। खैर जान बची लाखों पाए कि गनीमत है कि ज़िंदगी बच गई। सैयदानी भी समझ रही थी कि उसे कंकर और पत्थर उन्होंने इनाम इकराम के तौर पे दिए हैं, और उनके बारे में बदगुमान हो रही थी कि जिन्नात थे ना, इधर भी उन्होंने, यहाँ भी मुझे उन्होंने दगा दिया है, धोखा दिया है। चलो कोई बात नहीं, यही गनीमत है कि मैं अपनी जान बचाकर वापस अपने घर आ रही हूँ। ये इनके घर का इनाम इकराम है। खैर घर पहुँच जाऊँ तो जानू बड़ा इनाम पाया, और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की जरी में से फेंकने शुरू कर दिए। चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता पर्दे की झरी से, पर्दे की दर से वो जो कंकर पत्थर थे उसे बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कायदा है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करते में घर आ गया। आंख बंद करते में यानी थोड़ी देर में घर आ गया। ड्योढ़ी में पालकी रखी गई। ड्योढ़ी में दहलीज में पालकी रखी गई। चिराग जल रहा था। पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत जो पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहरात हैं। जोत रोशनी, चिराग की जोत, चिराग की रोशनी जो पड़ी तो कहती है कि मैं क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझकर बाहर फेंकती जा रही थी वो तो जवाहरात थे। जवाहरात थे, कीमती मोती थे, कीमती पत्थर थे। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया। सर पीट लेना, पछतावा होना, पछताना। सर पीट लिया कि इतनी दौलत खोई, निगोड़ी फेंकने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन, तकदीर की खोट कहाँ जाती है? तकदीर की खोट, बदकिस्मती कहाँ जाती है? नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल ज़मुर्रद क्यों मिलते? एक एक पैर मन मन भर का हो गया। पैर मन मन भर का होना, चलना मुश्किल हो जाना। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे। 4 नगीने जवाहरात, नग, नगीने नग या जवाहरात रह गए थे। वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोनट पुलाव जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टे पांव आ गई? खैर तो है? मैंने दिल में कहा, लीजिए, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक ना हुआ दो दो हो गए। यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक ना हुआ दो दो हो गए। मैं खुदा मालूम कितने महीने परिस्तान में, खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी बी से बोली, हाँ भी भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक ना था, रास्ते ही से आ गई। अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल जाऊंगी। इसी के साथ हमारा सबक परिस्तान की शहज़ादी मुकम्मल हुआ चाहता है। उम्मीद है आपने इस सबक को भरपूर दिलचस्पी से पढ़ा और सुना होगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।